یہ بھی آپ آف تو نہیں ہوگی انشاءاللہ، اللہ کرے گا چلتی رہیں گی، لیکن اس کے بیچ میں ہے نا آپ وہ بھی جو نا میں چھوٹی چھوٹی سوروں کا کر رہی ہوں، اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ وہ بھی کرتے رہیے گا تاکہ ہمارے پاس روٹ ورڈز روٹ میننگ آ جائے نا. چلیں جی ہم آتے ہیں سب سے پہلے سوال میں. تو ہمارا سب سے پہلا سوال کون سا تھا؟ چلیں بسم اللہ الرحمن. ہاں اسم اور وہ ڈھونڈنے کا تھا، فیل ڈھونڈنے کا تھا. چلے یہ میں آپ کو میں ایسے کرتی ہوں، میں گروپ میں فارورڈ کرتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کے گروپ کو دوبارہ سے مل جائے، صحیح، تاکہ ہمیں دوبارہ ڈھونڈنا نہ پڑے. چلے کہاں گیا؟ ہاں بھیج دیا میں نے. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر 1 ہے، اس میں ہر فعل اسم جدا جدا کرنا ہے. چلے قرآن کی آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. سب نے بہت اچھا لکھا. جو پہلی آیت ہے یہ قرآن کی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو، مجھے پتا ہے کہ کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس میں حرف کون سا ہے. لو حرف ہے، اب جدا کرتے جائیں. لو حرف ہے، میں لکھوں بہتر ہے، میں حرف کو پہلے جدا کرتی ہوں، ٹھیک ہے. لو حرف ہے، الا حرف ہے، اس کو کہتے ہیں حرف استثناء. ہاں الا حرف ہے، فی ہما ہے تو فی حرف ہے. اچھا آپ نے دیکھا ل ف س ل ف س د تا ہے نا. اس میں اصل میں مجھے سب بہت ماشاءاللہ سے اچھا آپ نے بتایا تھا کہ فسد، فسد جو ہے یہ فعل ہے، لیکن ل حرف ہے، اس کو بھی یہاں ہمیں نکالنا ہے کیونکہ ل پلس فسدتا ہے، تو ل بھی حرف ہے. یہ ہمارا ہو گیا حرف. دیکھا آپ نے کتنے حروف ملے ہمیں ایک آیت میں؟ 4. آپ سب دیکھیں آپ لوگوں نے یہی لکھا ہے یا کچھ اور لکھا ہے یا تھوڑا سا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے اس میں جو ایک کیا وہ ٹھیک ہے. ایکچولی میں سمجھی حرف اسم اور حرف فعل اس میں جدا کرنا ہے، تو حرف وہ حروف جار تو میں سمجھی نہیں تھی کہ اس کو بھی جدا کرنا ہے. ہاں نہیں کوئی بات نہیں. اس دفعہ کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم تھا نا آپ کا، تو آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اب جب میں آپ کو دوں گی کہ اس میں سے حرف فعل اور اسم نکالنا ہے، تو آپ کو اس طرح سے حروف نکالنے. صحیح. پہلی آیت میں ہاں لو الا فی اللہ، یہ چاروں حرف ہے. لفسدتا میں کسی نے نہیں لکھا کہ لا حرف ہے، یہ حرف ہے، اس کو حرف کرنا ہے. پھر دوسرا جو امام علی علیہ السلام میرے مولا کائنات لکھا ہے حرف میں لکھا ہے لو. ہاں آپ نے لکھا ہے صابرہ آپا. ہاں ماشاء اللہ سے اللہ نے لکھا ہے. چلے اچھا ماشاء اللہ سے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ بہت اچھا، پر کہیں کہیں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے تو نارمل ہے نا. چلے رحم اللہ امرأن عرف قدرہ ولم یتعد طولہ. اس میں کون سا حرف ہوگا؟ سب بتائیں گے مجھے تھوڑا سا. اس میں لم ہے نا، لم حرف جازمہ ہے. لم حرف جازمہ، بہت اچھا آپ نے کہا تنویر آپا. اور دوسرا کون سا ہوگا حرف ہمارا؟ نہیں سبزی صابرہ آپا. اچھا یہ قدرہ جو نہیں ہے، اس میں قدرہ جو ہے یہ فعل لکھنا ہوگا. یہ جی یہ فعل ہوگا. قد، ہاں میں نے فعل لکھا تھا ہاں یہ قدرہ. قد. اچھا اس اور میں وہ ضمیر. ہاں بہت اچھا. اس میں ایک واو حرف ہے
اور ایک لم حرف ہے. ہاں واو حرف ہے بالکل. صحیح, اور لم حرف ہے. چلے اس کے بعد ہم آتے ہیں نیچے. انکم ان رغبتم الى اللہ غنمتم ونجوتم وان رغبتم الى الدنیا خسرتم وحلقتم. اس میں سے کون سے حروف ہوں گے؟ اس میں انا ان با ہاں الا الا ہاں الا حرف جر. اچھا و ہے ونجوم تم. ان حرف ہے لیکن حرف مشبہ بالفعل ہے, اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ. چلے اچھا پھر ہے دوسرا کون سا ہوگا؟ ان ان ہوگا. بہت اچھا, ان. پھر اور کون سا ہوگا؟ الا بہت اچھا, بہت زبردست, الہ. پھر وا و جی نجوتم وَإِن رَغِبْتُمْ إِلَى الدُّنْيَا. چلے پھر اور کون سا ہوگا؟ تم تم تو ضمیر ہو گیا نا. ضمیر واہ آتا ہے, واہ حرف ہے واہ, اس میں. بہت اچھا. اور دوبارہ ان. ہاں نجوتم وہ لکھ لیا, وہ لکھ لیا. جی. صابر آبا کوئی بات نہیں کہ دو دفعہ ابھی آ جائے نا, کیونکہ یہاں دو دفعہ ہے نا. اچھا اوکے. لو کا ان کا کیا بولا آپ نے؟ ان کون ان کیا ہے؟ ان حروف مشبہ بالفعل. ان تو شرطیہ ہے, حرف شرطیہ, ٹھیک ہے. ان حرف مشبہ بالفعل. تنویر آبا مشبہ بالفعل یعنی فعل کے جیسا, ایسا حرف جو شبیہ ہے فعل کی. ہاں جی اوکے. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں, ماشاءاللہ سے ہو گیا سب ہے نا. ہاں بہت اچھا. چلے یہ تو ہمارا ہو گیا, آپ نے دیکھا یہ ہمیں مل گئے حروف. اچھا اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف. ہمیں ان تینوں میں سے فعل ڈھونڈنا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. چلے فعل ڈھونڈتے. کون سا ہوگا پہلے سینٹینس؟ کانا. کانا. کانا لیکن بریکٹ میں آپ لکھو گے, اس کو ہم نے نہیں پڑھا ہے. کانا فعل ہے لیکن ادھورا فعل. فسدا. جی ہاں بہت اچھا دائرہ با. کانا جو ہے یہ فعل ہے لیکن اس کو کہتے ہیں ادھورا فعل. ہم اس کو کہتے ہیں افعال ناقصہ. افعال ناقصہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو. لفظ چلیں. اور کون سا فعل ہوگا؟ فسدا. فسد تا. فسد تا. چلیں بہت اچھا. اچھا اس کے بعد رحم اللہ امرأن. جی رحیمہ رحمہ فعل. بہت رحیمہ اچھا. عرفہ قدرہ. ہاں اور یہ کیا تھا؟ یتئی عطا. اور یہ تورا. ایک رحیمہ منٹ. فعل ہے. جی رحم جی اللہ. رحیمہ فعل ہے. جی صابر آبا رحم اللہ, رحم کر دیا اللہ نے اس انسان پر. جی عرفہ. قدرہ کیا ہوگا؟ قدرہ اس کا فعل ہے اور اس کا ضمیر. قدرہ فعل ہوگا؟ فعل نہیں ہوگا. آپ فعلا کے پہ وزن پہ. کس کے وزن پر ہے؟ فعلا مطلب بیچ میں ساکن. این کے اوپر نہیں ہوگا. فرا کبھی بھی ہم نے فعل کا جو وزن ہے وہ فعل نہیں پڑھا. ہم نے جب بھی پڑھا ہے فعل کا وزن متحرک. بیچ میں ساکن نہیں آتا ہے نا, ہمیشہ زبر زیر اور پیش آتا ہے. بالکل صحیح, ایک دم صحیح. کبھی بھی ہمارے پاس ساکن نہیں ہوتا. پھر یہ کیا تھا؟ میں نے فعل لکھ دیا. مجھے نہیں پتا کیا تھا. ابھی تو آپ کو ڈھونڈنا ہے نا. قدرہ کیا ہے اس میں؟ قدر. ہاں یہ فرحہ
तनवीर आपा बिल्कुल सही, कदर इसम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या लेकिन होता ये है? इसम कैसे होगा? इस पे तो तनवीन भी नहीं है, इस पे अल भी नहीं है, इसके साथ जर भी नहीं है, तो मैंने कहा ये सब नहीं है तो फिर ये फेल है। नहीं देखिए मैंने आपको इसके साथ जमीर बहुत अच्छा, इसके साथ जमीर हो गई, इसको हमने मुजाफन इले तो पढ़ा है ना फरहा? जी जी पढ़ा। हाँ, तो ये देखिए कदरहु मुजाफन इले हो गया, उसकी कदर, उसकी वैल्यू, उस एक मर्द की वैल्यू। लेकिन वो तो जेर लेता है ना मुजाफिर सेकंड जैसे मतलब। नहीं, जब देखिए हम जब मुजाफिर में दो नाउन जब आपस में मिलते हैं तो फिर वो जेर लेता है, लेकिन जब एक नाउन और एक प्रोनाउन होता है ना तो फिर वो जेर नहीं लेगा। यानी इसके मतलब की तरफ से आया ना, हाँ, उनकी बिल्कुल। उसकी कदर है। चले मैं इसको यूं करती हूँ, ठीक है, कदरहू, इसको ऐसे करती हूँ, देखें इसको मैं ऐसे करती हूँ कदरहू, ओके। यहाँ पर मैं एक दफा लिखती हूँ उसकी कद्र, ये हु है ना, ये इंसान को बताता है, अमरान यानी इंसान, ठीक है, कदरहू उसकी कद्र। लेकिन एक दफा मैं क्या करती हूँ, कद रुल, कद रुल इंसान ने, हो गया मुजाफिर इले। जी अच्छा, ये मतलब तो ये हो गया ना। हाँ, ओके ओके, हाँ हो गया है ना, हो गया ना। जब आप प्रोनाउन को हटाकर उसकी जगह पर नाउन रखते हैं तो ये सेम मीनिंग होती है ना, नाउन और प्रोनाउन की, दोनों में फर्क नहीं होता ना, इसलिए मुजाफिर इले ये दोनों साथ में हो जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, अच्छा अब हम आते हैं कदरहू। अच्छा हाँ फरहा, एक चीज आप हम सब नोट कर लेते हैं, देखिए मैंने आपको फेले माजी के, मुजारे के, अम्र के वजन आपको मैंने बता दिए ना, कि फेले माजी का वजन क्या होता है, मुजारे का वजन क्या होता है, अम्र का वजन क्या होता है। तो जब हमें वजन का पता है, मैंने आपको बताया था फेले माजी क्या होता है, फ़अला फ़इला फ़उला, यही होता है ना। फेले माजी में कहीं पर कोई साकिन होता है? नहीं होता, ठीक, निकल गया। जब फेले मुजारे होता है तो उसके शुरू में हरफे अतैन लगते हैं ना, इसमें नहीं है, जी जी इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर फेले अम्र के लिए हम लामे अम्र लगता है, वो भी नहीं है ना। फिर उसके बाद हम हमजा लाते हैं, वो भी नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लाए नफी और लाए नहीं लाते हैं, वो भी नहीं है। लम है, वो भी नहीं है। अन लन कई इज़न, ये भी नहीं है, हरुफ नासिबा। तो ये सब चीजें उसमें नहीं आई है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये, क्योंकि ये सारी चीजें साइन है फेल की, और उसमें से कोई साइन भी उसके ऊपर नहीं तो ये आया फेल नहीं हो। तो ये फेल नहीं होगा। अभी क्लियर हो गया ना? सही। चले जी, अच्छा आपकी आवाज स्लो आ रही है, ये मेरी आवाज पता नहीं कहाँ से शोर आ रहा है। हाँ थोड़ा शोर आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ये थोड़ा सा हम कर लेते हैं ना, उसके बाद हम म्यूट करेंगे, फिर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जी अब नहीं आ रहा शोर। हेलो चलिए चलिए। अच्छा अरफ कदरहू को हमने निकाल दिया फेल से। चलिए जब हम नाउन में आएंगे तो इसकी बात करेंगे। अच्छा वलम यतअद्दा तौरहू, इसमें बताएं कि फेल कौन सा है। यतअद्दा भी फेल है और तौरा फेल है, मैंने तौरा का फेल लिखा। तनवीर आप क्या कहते हैं? तौरा वो वही हो गया ना, इस्म और वो ज़मीर, देखा आपने, मुज़ाफ़ इलैह। बिल्कुल सही, बीच में साकिन कभी नहीं होता फेल में, सही। चले तनवीर आप क्या कहते हैं? लम यतअद्दा तौरहू में कौन सा फेल होगा? नसीम बहन, साबिरा आपा, ताहिरा बहन, आप सब क्या कहते हैं? यतअद्दा तो फेल मुज़ारे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फेल मुज़ारे, बहुत अच्छा। चले जी, अच्छा इन्नकुम इन रग़िबतुम इलल्लाहि गनिमतुम व नजूतुम व इन रग़िबतुम इला दुनिया खसिरतुम व हलकतुम, इसमें से तो आपको बहुत ज्यादा फेल मिलेंगे। चले शुरू करते हैं। इन्नकुम से,
इन रग़िबतुम, प्रोनाउन है ना इनकुम। रगबा रगीबा, बहुत गनीमा, अच्छा, रग़िब असीरा, हलका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रग़िबा और लेकिन ये रग़िब लिखा है, रग़िबा नहीं लिखा हुआ है। रग़िबा है, हाँ रग़िबा, हाँ रग़िब तो गनिम तो, रग़िब और गनिम हो गया, तो भी ये फेल है। मतलब लास्ट में साकिन आता है, गनिम और रग़िब। वो ये प्रोनाउन के साथ है ना, प्रोनाउन के साथ। फरहा, हाँ प्रोनाउन के तो ये फरहा प्रोनाउन मैंने, करें हाँ यानी फरहा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारा छठा सीगा जो होता है फिर माजी में, छठे सीगे के आखिर में जब हम उनके साथ प्रोनाउन लगाते हैं तो जो लाम अरे फेल है वो साकिन होता हाँ है ना। रग़िब सब कुछ भूल गया। लिखा हुआ भी मैंने फेल ही है यहाँ पे, रग़िब को गरीब को भी फेल लिखा हुआ है। हाँ, बहुत उन्होंने अच्छा। देखिए तुम जो है ये तो फेल माजी है ना, तुम जो है ये है ही प्रोनाउन फेल माजी का। चलें जी, रग़िबा, गनिमा और कौन सा होगा? असर तुम ये है। आपको पता है नजो तुम भी फेल माजी है। आपने नजो तुम जी, क्योंकि तुम प्रोनाउन फेल माजी के लिए यूज होता है। अरे ये तो सही लिखा हुआ था। फेल लिखो से यार अभी थोड़ी सी चले। लिखा सही, यहाँ आके सब भूल गई। हाँ चले, और कौन सा होगा इन रग़िब तुम के बाद? हसीरा, हलका। कसेर तो बहुत हल और ये अच्छा, हलक। बहुत बहुत अच्छा। खसरा और हलका, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। चलें जी, अभी हम आते हैं नाउन की तरफ, इस्म की तरफ आते हैं। अभी इसमें से सबसे पहला लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। चलो इसमें से इस्म ढूंढते हैं। इलाहतुन और अल्लाह। हाँ अच्छा, एक और मजे की बात, मैंने इस्म लिखा था तो मैं भूल गई थी, मुझे इस्म के साथ यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों लिखना था, जमीर भी लिखना था, तो हम इस्म प्लस जमीर ढूंढते हैं, ठीक है? चले जी, अच्छा, अभी शुरू करते हैं जी। पहला ज़मीर ये होंगे ना, फीहिमा, हिमा, हिमा और आलिहतुन इस्म हो गया, आलिहतुन इस्म हो गया, और अल्लाह भी इस्म है, और ला फसदता का जो ता है वो ता भी ज़मीर है। बहुत अच्छा। अच्छा वो ज़मीर को हम नहीं ज्वाइन करते, ठीक है, क्योंकि वो फेल माजी का है। चले ओके, दूसरे में आते हैं रहिमल्लाहु अम्रअन अरफ क़द्रहु। चले सब बताएंगे कौन कौन से है इसमें, हम सब मिलके बताएं। में अल्लाह इस्म है, अमरान इस्म है जी, और कहाँ से पता चला और ये अम्रअन इस्म है? तौरा इस्म है। है जी अम्र इस्म है। तौरहु। हाँ तो ये भी है। हाँ बिल्कुल सही, तौरहु। हाँ और हाँ वो पहला सिगार है। हाँ पर कहाँ से पता चला अम्रअन इस्म है? ये इसमें तनवीन लगा है ना, तनवीन डबल जबर नहीं, है। अम्र तो उसका काम को बोलते हैं ना, फेर आता है, फिर तमीम लगी है पता नहीं अलिफ के बाद। हाँ तनवीन की वजह से, तनवीन की वजह हाँ से। चले नीचे आते हैं, इन्नकुम इन रग़िबतुम इलल्लाहि गनिमतुम। चले इसमें से हम ढूंढे जी, इसमें भी अल्लाह इस्म है, अल्लाह है। और वो जो तुम है ये सारे ज़मीर है। और उसको हम नहीं काउंट Pronouns. करेंगे, हाँ उसको अभी नहीं दुनिया इसमें दुनिया करेंगे। दुनिया और इधर दुनिया इसमें इला हर्फ जार। मजे की बात इसमें सिर्फ दो इस्म है ना, दुनिया इस्म। अल्लाह और दुनिया। बहुत अच्छा। दुनिया चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका तर्जुमा कौन करेगा? किसका करने का? लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। साबिर आप करेंगे इस पूरी लाइन का, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पे सबको देती हूँ एक एक। लौ कान, अगर हाँ अगर कान होता, अगर होता, हाँ फीहिमा उसके, फीहिमा हिमा उसके, उसके अंदर उसमें हिमा, हिमा कितनी चीजों के बताता है?
हिमा लेडी फेमिनिन है हिमा उसके हिमा अंदर हिमा इसमें जी हिमा हिमा यानी हुमा, दोनों सेम है, हुमा हिमा। हिमा उसमें कितनों में? साबिरा आपा फीहिम, फीही, फीहिमा, फीहिम। हिम उसमें वो जी हिमा नहीं समझ आता है। फी है उसमें बोलते हैं जी हिमा नहीं, हिमा इसलिए दो में आता है ना, मर्दों में भी आता है औरतों में भी आता है ना। माधु में था दो दो मर्द दो औरतों में। दो उस जी जी उस दो में बहुत अच्छा बहुत अच्छा, दो में हाँ 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 आले हत हाँ नहीं पता है। सॉरी, अगर हम इलाह को इलाह, ये भी इलाह ही है, आलिहतुन यानी माबूद जिसकी हम इबादत करते, यानी अल्लाह। अल्लाह ओके उस दोनों अल्लाह इल्ला हाँ इल्ला अल्लाह माबूद सिवाय अल्लाह हाँ लफसद लफसदता ल वो ताकीद है जी बिल्कुल सही। एम्फसाइज है एम्फसाइज लो हाँ लो हाँ। फसद चले इसको मैं करती हूँ। हाँ ताकीद है ना, ताकीद नहीं लव है। झर झर है हाँ। नहीं ल ल यानी वो के लिए लफसदता हाँ दोनों शर्तिया शर्तिया फसद यानी फसाद ना हाँ हाँ बिल्कुल सही। फसाद ता यानी दो फसाद ता हाँ दो फेमिनिन के लिए है हाँ लेकिन पूरा उसका मीनिंग नहीं आता है मगज में क्या कहना चाहते हैं। चले मैं इसको करती हूँ। साबिरा आपा बहुत अच्छा आपने किया। ये थोड़ा सा आयत है कुरान की, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, इसको मैं खोलती हूँ। चलिए, लव कान, लव जो है ना ये हर्फ शर्तिया है, अगर अगर हाँ अगर हाँ। अच्छा मजे की बात ये है, आप एक चीज को नोट कर ले कि जब भी हमारे पास कुरान में 3 लफ्ज, आप ऐसे नोट कर ले, कुरान में 3 लफ्ज आप नोट कर ले, 3 लफ्ज कुरान में आते हैं और उसकी खास मीनिंग होती है। अच्छा सही से नजर आ रहा है ना? जी मैंने शायद बताया था। अच्छा चले फिर भी मैं करती हूँ। जब कुरान में ये कद, एक लफ्ज आता है कद, एक आता है इन और एक होता है ला। अच्छा ये जो है शर्तिया है, और कद जो है वो तवक्को कहते हैं, वाक़ई होने वाला हर चीज। जब कद किसी सेंटेंस में किसी जुमले में आएगा ना तो कद इज़ा, सॉरी इज़ा, 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 इन और लो। इज़ा जब आएगा तो इसका मतलब है कि ये काम 100% होकर रहेगा, जब इज़ा आएगा किसी जुमले में। और इन जब आता है तो इसका मतलब होता है 50-50। और जब लो होगा तो इसका मतलब होता है 0। लो जब भी हो ना, लो इसका मतलब है कि ये हरगिज काम नहीं हुआ है और ना होगा। और लो यहाँ पर शर्तिया है, हर्फ शर्त। मुझे लगता है नहीं, मैं नहीं सिखाया।
जी इज़ा इन जी हमने नहीं किया, इज़ा और लम नहीं किया, इन जमा किया करा था। था आपने, इनकी- कहा था ना हाँ हाँ लम लमा, ये सिखाया था मुझको। हाँ चलिए चल आज है ना, अब इसको नोट कर ले। किसी भी सेंटेंस में जब इज़ा आ जाए तो इसका मतलब है कि 100% काम होगा। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वो वाक़िअ होने वाला, वो जो होने वाली चीज़ें हैं, जब वो होगी तो वो होकर रहेंगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका मतलब होता है अगर। अगर आपके पास फलाना शख्स आए तो इसका मतलब है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो, कुरान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है कि झगड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कि नहीं होना तो इम्पॉसिबल है, तो उसके साथ तो इज़ा होना चाहिए था। तो इन आता है, यानी 50-50। लो यानी हरगिज ये काम नहीं हुआ। तो आप देखो यहाँ पर लो इस्तेमाल हुआ है, यानी ये इम्पॉसिबल है, ये हुआ ही नहीं है। चलिए हाँ, लो कान, अगर होता। कान यानी होता, अगर होता। कान जब भी आएगा इसका मतलब पता है होना, किसी चीज का हो जाना या होना। बी बिकम इसकी मीनिंग में आता है। लव अगर, कान होता, फी हिमा इन दोनों के अंदर, यानी जमीन और आसमान में, आलिहतुन एक माबूद, एक इलाह जिसकी इबादत की जाती है, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के अलावा। अगर होता जमीन और आसमान में कोई और माबूद अल्लाह के अलावा, ल हर हाल में, फसदता वो दोनों झगड़ा करते, लड़ते, आपस में फसाद करते। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। ये तो दिमाग में नहीं था, इसका मतलब यूं आ जाएगा। यानी आपने किस तरीके से अंदाज लगा फी है दोनों जमीन और आसमान, ठीक है, क्योंकि जमीन और आसमान जमीन वही और जमीन जब लेकिन उसमें वो आगे और पीछे की आयत हाँ पे से भी जान सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा साबिरा आपा आपने। जब हम फी हिमा कहेंगे ना, तो फिर भले आप जमीन और आसमान ना कहिए, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा, तो आप कह सकते इन दोनों में। तो लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। थोड़ी सी आपने देखा लफ्ज बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं इनको मिलाना। चले चले जी, फरहा कहाँ है? रहमल्लाहु अमरान अरफ कदर। जी ये रही मैं। ये रही, चलिए हाँ शुरू, बिस्मिल्लाह, इसका तर्जुमा करें। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने रहम किया, बहुत अच्छा। रहीम अल्लाह। अमरन, मतलब अमरन वो होता है ना अपनी मर्जी से, इसको बोलते हैं। नहीं देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है, मैं आपको फिर से लिखती हूँ, इसको आप नोट कर ले। जी इंसान को कुरान में इन लफ्जों से बुलाया गया है। इंसान, बशर, ओके, नास, नास, और 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 मर। मर इंसान को कहते हैं। जी। चलिए तो अम्र है तो मतलब तमाम इंसान, हाँ इंसान, हाँ तमाम इंसानों पे हम्म, वो जबर आ रहा है ना उस पर, अम्रन के ऊपर तनवीन वाला जबर। हम्म, उसके बाद है अरफा। हाँ अरफा की मीनिंग नहीं पता मुझे। अरफा, मारिफत, मारिफत। हाँ अल्लाह ने रहम किया तमाम इंसानों पे, हाँ और मार्फत दी। अरफा, हाँ कि कोई वो बात नहीं मतलब अब, तमाम हाँ इंसान कदर कर रहे हैं उसकी। हाँ अब करो फरह, मैं इसको सिर्फ आप हो ना रूट मीनिंग के साथ करो, बाकी मैं खुद कर लेती हूँ, ठीक है? मैं आप मकसूदा जी, अरफ का मीनिंग पहचानना नहीं होता? हाँ बिल्कुल सही, हाँ आ,
पहचाने उस एक मर्द को, हाँ ऐसे होगा। नहीं, अरफा पहचाना उस एक मर्द ने, अगर पहचाना उस एक मर्द ने, जी जी। हाँ और कदराहू, हम्म, ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, तो उस एक मर्द की कदर की। सही। कदर को क्या कहेंगे हम? कदर को कदर कहेंगे। नहीं, फसी और बलीग जो तर्जुमा होता है उसमें सेम लफ्ज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे इसको? हाँ। आप बता दो क्या कहेंगे। कौन बताएगा? एहतराम करना, कदर, थोड़ा सा और, अहमियत, कीमत। अहमियत, अहमियत। हाँ, चलो। दिमाग को है ना जंग लग गया है, टाइम बहुत लग रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उतरेगा। चले। उस एक वर्ड की अहमियत। हाँ और लम जो है वो नेगेटिव में आता है ना, हाँ हुरूफ जाज़िम है ये। हाँ। तो इसकी क्या मीनिंग है? यताद था, लम यताद, लम यताद, इसकी मीनिंग इसके रूट वर्ड्स क्या होंगे? नहीं, ये आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। हाँ। अदद, अदद, साबिरा, इसकी जो रूट वर्ड्स होंगे ना वो अदब होगा। अदब। हाँ, क्योंकि देखिए अगर हम कहते हैं ना अदद, तो ये लम की वजह से वो जो वाव था आखिर में वो डिलीट हो गया। पैरवी नहीं कर, पैरवी करना। अदब इसके रूट मीनिंग्स क्या होंगे? अदब, अदब, तो क्रॉस, लिमिट को क्रॉस करना। हाँ, मैं लिखती हूँ। अदब का अर्थ पैरवी करना या नहीं? नहीं नहीं, लिमिट को क्रॉस करना। अदब वो मुबीन कहते हैं ना, दुश्मन, यानी अच्छा, ऐसा दुश्मन जो हर हद मतलब अदावत से निकला है वर्ड। अदावत से निकला है। अदावत भी इसी से निकला है ना कि हर लिमिट को क्रॉस कर जाना। देखिए हम कहते हैं ये मेरा अदुव है, कुरान कहता है शैतान जो है वो अदुव वो मुबीन है। अदुव कहते हैं ऐसे दुश्मन को जो जाहिरी वार करता है, छुपके वार करता है, हर तरह का वार जाने नहीं देता, उसको कहते हैं। हर अल्लाह के हर कानून को क्रॉस करके तोड़ के रख देता है, पर अपने दुश्मन को जाने नहीं देता। और एक होता है दुश्मन जो बुग़्ज़ रखता है, वो अंदर का बुग़्ज़ होता है, सीने में बुग़्ज़। ठीक है, चलें जी। अदब यानी अदब। लेकिन इसमें तो बे नहीं है, तो आपको कैसे पता लगा ये अदब है? क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा? नहीं, इंशाल्लाह जब आप पढ़ोगे ना ग्रामर में आगे, देखिए जब हम वोवेल्स में आएंगे ना, जब हम हुरूफ़े इल्ले में आएंगे तब पता चलेगी ये वाव क्या हरफ़े इल्ले है। लम ने उसको डिलीट कर दिया। लम जब भी आएगा हुरूफ़े इल्ले को डिलीट कर देता है। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ेंगे। अदब यानी लम का मीनिंग हरगिज नहीं होता। जी बिल्कुल से, हरगिज नहीं। और अदब का मतलब होता है लिमिट क्रॉस करना। लिमिट वो नहीं होगा कि हम पास्ट में भी नहीं हुआ, इस तरह कुछ नहीं है? नहीं समझी मैं तनवीर, आप ये नहीं है। नहीं समझी मैं आपकी बात। जैसे लम जो है हाँ, हुरूफ़े आपने जाज़िम है ना, बताया था। ये जो काम है पास्ट में भी नहीं हुआ यूं। हाँ लम हरफ़े जाज़िमा है। पास्ट नेगेटिव, पास्ट नेगेटिव, इसमें कोई ऑर्डर वगैरह नहीं होता, लेकिन एक चीज़ है जो मनफी चीज़ है जो पास्ट बता रहा है, पास्ट में बता रहा है। मतलब अदावत नहीं की, लिमिट को क्रॉस नहीं किया, यहाँ अदावत नहीं आई। लिमिट को क्रॉस नहीं किया। तौरहू, तौर और अच्छा नहीं पढ़ा आपने। तौर इसको आप नोट कर ले। देखिए हमने इतने हम लोग, मैं कोशिश करती हूँ आपकी क्लास में नए नए वर्ड्स लेकर आओ, नई नई चीज़ें लेकर आओ, ताकि आपको जब तर्जुमा करोगे ना तो आपके पास एक खुद की डिक्शनरी मौजूद हो इंशाल्लाह। देखिए एक होता है तवारा, हाँ, एक होता है तवारा और एक होता है दूर। ओके, तवारा का मतलब होता है हालत, कंडीशन, पोजीशन। ठीक है, तवारा। तूर का मतलब होता है कोहे तूर, वो पहाड़ तूर जिसपे हजरत मूसा गए थे। शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ठीक है, तौर। तो यहाँ जो मीनिंग है आपने देखा, त्वा 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 के ऊपर वाव है और जबर है, सॉरी, है ना।
पेश नहीं है वाव के ऊपर साकिन है। हाँ, अगर त्वा के ऊपर पेश होता ना तो हम समझ जाते तूर है, तूर यानी तो पहाड़। है। ओके चलिए मैं इसको मतलब उसकी हालत को, उसकी हालत से, उसकी हालत को बहुत उसकी अच्छा। हालत चलिए मैं इसको करती हूँ सही तर्जुमा, से। आप इसको नोट करते जाए। फरा आपने बहुत अच्छा किया, पर थोड़ा सा इसको मैं मिलाती हूँ। रहिम अल्लाह, रहम किया अल्लाह ने, इमरान इंसान पर, अरफा किस इंसान पर अल्लाह ने रहम किया। अभी इसको खोल के बताते हैं, असल में यूं होना चाहिए था या अल्लज़ी इसमें होता, रहमल्लाहु अमरअन अल्लज़ी अरफा क़द्रहु, जिसने पहचाना, रहमल्लाहु रहम किया अल्लाह ने उस इंसान पर, उस इंसान को, अरफा जिसने पहचाना, क़द्रहु अपनी अहमियत, अपनी कीमत, अपनी फजीलत, अपनी कैपेसिटी, वलम और हरगिज नहीं, यतअद्दा लिमिट को, अल्लाह की हुदूद को तोड़ा, क्रॉस किया, तौरहु अपनी हालत से। क्लियर जी, क्लियर जी। हम लोग कैसे करते हैं और आप कैसे करते हैं? हाँ, हम तो बहुत बुरा करते हैं। नहीं। बिल्कुल बच्चों की तरह उल्टा सीधा। मैं वही कह रही हूँ ना कि इंशाल्लाह हम ये 2-3 महीने कंटिन्यू काम करेंगे ना तो आप देखोगे, क्योंकि मेरी बड़ी क्लास जो इतना खूबसूरत करती है तर्जुमा, कभी कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कभी ऐसे होता है ना कि दरवाजे पे कोई आ गया, बेल बज गई, दासी आ गई, तो मेरी जब तवज्जो उधर चली जाती है ना और मैं हाँ हाँ करती हूँ तो पकड़ लेते हैं वो मुझे और वो ठीक कर लेते हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि आप भी उनकी तरह करेंगे इंशाल्लाह, उससे भी ज्यादा अच्छा। इंशाल्लाह। जब यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जा सकते हैं इंशाल्लाह, इलाही आमीन आमीन। चलें बस आखिर में हम करते हैं और फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, या बस थोड़ा सा और मैं करूँगी आपके साथ आज कुछ और ग्रामर, छोटी सी जो लास्ट वाली इसकी प्रैक्टिस। चलें नसीम बहन आप और दायरा बहन आप ये आधा आधा कर लेंगे, तनवीर आपा आपसे कुछ और करवा लूँगी। इन्नकुम इन रग़िबतुम इलल्लाहि गनिमतुम। चलिए इन्ना बेशक, हाँ बहुत अच्छा, बेशक, हुकुम तुम सब, बहुत अच्छा, तुम सब, जी। इन रग़िबतुम, इन अगर, अगर, रग़िबतुम, इनका अगर होगा, बिल्कुल सही, अगर, हाँ बिल्कुल सही, अगर, जी। रग़िबतुम इलल्लाहि गनिमतुम वनजुतुम, यहाँ तक लल्लाही अल्लाह की तरफ, जी। रग़िबतुम क्या होगा? तुम सब रग़बत रखो, जी। रग़बत की मीनिंग क्या तुम होगी? सब राग़िब हुए, तुम सब राग़िब राग़िब हुए अल्लाह की तरफ। राग़िब की मीनिंग क्या होगी? अल्लाह की तरफ जाने को नहीं कहते राग़िब होना। हम उर्दू में भी कहते हैं ना रग़बत रखो, रग़बत यानी शौक है, पसंद है। थोड़ा सा इसको हम, अगर हम इसको चले इसको आप करें फिर मैं अरबी में करती हूँ, ठीक है जी। गनीम तुम तो माले गनीमत से है, अगर माले गनीमत होता तो गनिम तुम नहीं आता कि तुम लोग गनी हो गए। वैसे वही ये वो वाला बने ना, ये पैसे वाले, हाँ वही पैसे वाला वाला बेनियाज, हाँ
या गनीमत तुम गनीमत जानो, सही, बिल्कुल सही। हाँ, आप करें, मैं इंशाल्लाह इसको खोल। वनजो तुम यानी तुम सरगोशी, तुम सब सरगोशी करो। बहुत अच्छा। मैं इंशाल्लाह इसको खोलती हूँ। बहुत अच्छा आपने ताहिरा बिन, इतना अच्छा आपने कहा, क्योंकि आप रूट वर्ड्स के साथ मीनिंग कर रहे हो ना जो की। सही। वाइन और अगर रबिब तुम, बस इतना काफी अगर है। तुम सब नसीम बिन, आप करोगे आगे? जी पीछे से इस तरह कर दूं दोबारा से? कोई बात नहीं जी। यहाँ से करना है इन रगे तुम, इला और दुनिया। अगर हाँ अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू करते, हाँ और अगर तुम रुजू करोगे इला दुनिया, दुनिया की तरफ, फसिर तुम तो तुम पछतारा पाओगे और हलाक हो जाओगे। वो हलाक, हाँ सही, हलाक। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, पहले तो मैं आपको इन दोनों की मीनिंग बता दूं। देखिए, रग़बा की जो मीनिंग है आप नोट कर लें। रग़बा जो उसकी हम कहते हैं ना, उर्दू में भी हम कहते हैं रग़बत। ये थोड़ा सा इसको मैं खोलती हूँ अरबी में। अरबी में रग़बा कहते हैं कि कोई चीज़, किसी चीज़ का बहुत खुला और वसी होना, नंबर एक। और नंबर दूसरा होता है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहना और उसकी तरफ माइल होना। यानी अगर किसी चीज़ को आप चाहते हो ना, उसकी तरफ स्टेप भी उठाते हो, कदम बढ़ाते हो जिसकी तरफ। ठीक है। रग़बा का मतलब होता है हरीस होना, किसी चीज़ के लिए हरीस होना और उसकी तरफ कदम बढ़ाना, स्टेप बढ़ाना, उसको कहते हैं रग़बा। हम अलम नशरा में भी पढ़ते हैं ना, व इला रब्बिका फरग़ब, कहते हैं ना, व इला रब्बिका, और अपने रब की तरफ फरग़ब, रग़बत करो, यानी अल्लाह की से उनकी तरफ तवज्जो दो, तवज्जो करो, मोहब्बत, इश्क कर कर, मोहब्बत और हिर्स करके उसकी तरफ कदम बढ़ाओ। आपको पता है ये जो हम कुरान का कर रहे हैं ना, इसके साथ हमें मोहब्बत नहीं है, रग़बत है, क्योंकि हम जी कदम बढ़ा रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ? एक तो दोबारा से इसका तर्जुमा करवा दें पूरी मैं आयत का। अभी पूरा इसका करती हूँ। ठीक है। और गनिम तुम, गनिमा का मतलब भी होता है कि बेनियाज हो जाना। नजोत का मतलब अभी बहुत अच्छा आपने कहा कि खुसुड़ पुसुड़ करना, जैसे आपने कहा, लेकिन इसकी जो असल मीनिंग होती है नजवा की, नजवा, इसको आप नोट कर लें। नजवा भी कहते हैं खुसुड़ फुसुड़ को, और निजात भी इसी में से निकला है, निजात यानी आज़ाद हो जाना, निजात इसी में से निकला। असल में नजवा की मीनिंग होती है कि बहुत शदीद बदतरीन तूफान है जिसने हर जगह को घेरा हुआ है, जिसमें से बचने की कोई जगह नहीं है, लेकिन एक पहाड़ी की नोक है, पहाड़ी की टकरी है, जिसके ऊपर एक जगह है जहाँ पर इंसान बच जाता है। तो उस पहाड़ी की टकरी पे जाकर, या उस पहाड़ी की जो नोक है उस पे जाकर बैठने को, बचने को निजात कहते हैं, नजवा कहते हैं। ठीक है। असल में इसकी, और खुसुड़ पुसुड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे अलग थलग होकर बात करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत इससे मिलता है, इसलिए नजवा इसको कहते हैं। तारवन क्लियर हुआ? चले, इन्नकुम, बेशक तुम लोग, इन रग़िबतुम, हकीकत में हक तो ये है कि अगर तुम लोग, इन, अगर, रग़िबतुम, तुम लोग, यानी तुम लोग हरीस होकर, शदीद मोहब्बत के साथ कदम बढ़ाए तुम लोगों ने, इल्लाह, अल्लाह की तरफ। फिर से करती हूँ, बेशक तुम लोग, हकीकत में तुम लोग, अगर, मोहब्बत, शदीद मोहब्बत, हिर्स के साथ कदम बढ़ाए तुम लोगों ने अल्लाह की तरफ, गनिम तुम लोग बेनियाज हो गए, तुम लोग माला माल हो गए, वनजो तुम, और तुम लोगों ने निजात पाली, तुम लोगों को हर बुराई से, गंदगी से जो भी है, छुटकारा मिल गया। व इन, और अगर, रग़िब तुम लोग हरीस हुए, बहुत चाहा और कदम बढ़ाया, इला दुनिया, दुनिया की तरफ, खसिर तुमने ऐसा नुकसान कर दिया
کہ جو نقصان کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی. نقصان جب ہم کہتے ہیں تو نقصان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہو جانا, اور نقصان ایسا ہوتا ہے جو بھر سکتے ہیں. خسرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نقصان جو امپاسبل ہے, انسان اگر اپنی جان, مال, عزت, آبرو بھی دے دے تو وہ خسارہ, وہ نقصان نہیں بھر سکتا. وَحَلَقْتُمْ, اور تم لوگ برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے. کلیئر؟ کافی ہے یہاں جی, کافی ہے, مجھے لگتا ہے کافی ہے نا جی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دوسرا سوال کریں گے. باقی تو آسان ہے, لیکن جو آخری والا ہے وہ ہم سب کریں گے. حلق تم, ہاں اچھا جی. چلے میں ہلاک ہو جاؤ گے, کہا آپ نے کیا کہا؟ میں اس کو پھر سے میرا کرتی نیٹ ہوں بہت خراب چل گیا. جی کوئی بات نہیں, میں دوبارہ کرتی ہوں. انکم ان رغبتم الی اللہ غنمتم ونجوتم وان رغبتم الی الدنیا خسرتم وحلقتم. یعنی امام علی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اگر, بے شک اس میں کوئی شک نہیں, سچی ایک حقیقی بات بتاتا ہوں میں تم لوگوں کو, انکم حقیقت میں تم لوگ اگر محبت کی اور قدم بڑھائے تم لوگوں نے اللہ کی طرف, غنمتم تم لوگ مالا مال ہو گئے, ونجوتم اور تم نے نجات پالی, اور اگر رغبتم اگر تم لوگ مائل ہوئے, چاہا اور قدم بڑھائے تم لوگوں نے, الی الدنیا دنیا کی طرف, خسرتم تم لوگوں نے ایسا خسارہ کر دیا کہ جس کو کوئی بھر نہیں سکتا, وحلقتم اور تم لوگ ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں تک ہمارا ہو گیا. آج میں چاہتی ہوں تھوڑی سی پریکٹس کریں ہم, جو مجھے کافی ٹائم سے کرنا تھا. میں وہی کہتی ہوں نا, جولائی کے بعد انشاءاللہ, جولائی کے بعد ہم لوگ ویڈیو ریکارڈنگ بند کر دیں گے, اور جولائی کے بعد ہم پریکٹس کریں گے قرآن کی سوروں کی, اور آڈیو سے ہم کام کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم آتے ہیں, ابھی مجھے صرف کروانا ہے آپ سب کو حروف جار کے ساتھ, حروف جار پلس پروناؤن یعنی ضمیر. ٹھیک ہے, میں آپ سب کو ایک ایک لفظ دیتی ہوں, آپ سب سرو کرتے جائیں گے. صابر آپا آپ کے لیے ہے الہ, کیا؟ الہ. تنویر آپا آپ کے لیے ہے فی. نسیم بن آپ کے لیے ہے من. اور کہاں گئی فرحہ, آپ کے لیے ہے بے. اور طاہرہ بن آپ کے لیے ہے لے. اور کون رہتا ہے, ہو گئے سب کے جی ہو گئے. چلے ابھی اس کو ہم سرو کرتے ہیں ضمائر کے ساتھ. میں تھوڑا سا آپ کو اس کو کر کے دکھاتی ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے لیے وہ ہو جائے. جیسے میں ایک لفظ لیتی ہوں ان, یہ بھی حرف جر ہے نا, اس کو میں سرو کرتی ہوں ان ہو, ان ہما, ان ہم. پھر عورت کے لیے انہا, اس ایک مرد سے, اس ایک مرد سے دور, یا اس ایک مرد سے, ان دو مردوں سے, ان زیادہ مردوں سے, اس ایک عورت سے, انہما, انہن. اوکے سوری, انکا, انکما, ان کم. پھر ان کی, ہاں انکما, بہت اچھا, ان کی, انکما, بہت یہ اچھا. ہم کر چکے ہیں نا. جی بالکل کر جی چکے ہیں. ایک ضمیر ہے پروناؤنس نا. کر چکے ہیں, ریویژن ہو رہا ہے. طاہرہ بن آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں نے مجھے بولا کہ یہ ہمیں دوبارہ کروائیں, کیونکہ ہمیں یہ میرے بیٹے نے یہ ویڈیو جو تھا نا وہ ڈیلیٹ کر دیا تھا بائی مسٹیک. تو چلے انکوا, پھر انی, ہاں یہاں تشدید آئے گی نا, انی. پھر اننا, انا, انا, یہاں تشدید آئے گی کیونکہ دو نون ہو گئے.
नेक्स्ट टाइम आप सर्व करके आएंगे इला फी मिन बे ले, सही। फिर हम इसको करेंगे मिन होमा, मिन के बाद जो हु होगा उसको पेश आएगी, लेकिन इला फी बे और ले के बाद जितने भी ज़मीर आएंगे हु वाले जो हमारे थर्ड पर्सन के, उनको ज़ेर आएगी। ये हमें नोट करना है, ठीक है। काफ़ी है आज के लिए, थक गए होंगे ना सब लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्व करने का है ना हमें तो। जी सर, हाँ सर्व करने का है, ठीक है। तो अब तो थोड़ा दिमाग चलना शुरू हुआ है, अभी क्लास चल रही है तो संग लगा हुआ था ना, संग करना शुरू हुआ है। ये तो लहू हो जाएगा ना। हाँ बहुत अच्छा। मिन के लिए आपने क्या बोला? जी मिन के लिए उन में मैं हूँ। ला किसके लिए था? मेरे लिए मेरे लिए था ये। हाँ साबरा पर इला। आपका इला था ना, फी किसका? इला, हाँ हाँ, इला हाँ। था। मैं अच्छा वो मरियम के लिए भी कुछ दे दे बेचारे के लिए, वो फिर कहेगी कि मुझे भूल ये गए। मेरे लिए था ना। हाँ मरियम के लिए कौन सा हाँ। लफ्ज होगा? कोई एक लफ्ज आप दे दे मरियम के लिए। अल्लाह दे, अल्लाह हाँ 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 अला अला, हाँ, अला अला। हाँ अला। बहुत अच्छा, थैंक यू अला। हाँ ये मरियम के लिए है, ठीक है। तो आप इनको सर्व करके आएंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह जितनी जून तक हमारी ग्रामर होती है, हम जितनी पढ़ चुके हैं उसको रिपीट करूँगी बार 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 जून तक। फिर उसके बाद हम कुरान में आएंगे। तो इंशाल्लाह आज हमने किया, और नेक्स्ट टाइम हम जो हमारा रहता है लास्ट का सवाल, जो जिसका जो सवाल नंबर 3 सवाल थे, जिसमें ना 7 8 9 10 4, उसको हम करेंगे इंशाल्लाह। हम एक सलवात पढ़े। चलिए एक लास्ट काम मैं आप सबको थोड़ा, क्योंकि हमने काफी दिनों से फिल्म माजी सर्व नहीं किया, बस एक दफा हम सब फिल्म माजी सर्व करते हैं, फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। तो तनवीर आपा आपसे शुरू करूं, कोई भी लफ्ज आप ले लो। जी कौन कौन सा लफ्ज है? कोई भी आपको जो अच्छा लगे। कोई दे दे मुझे। चलिए मुझे सबसे बदर लग रहा है। कौन सा नहीं समझी मैं। बदरा। बदरा, चलिए बदरा कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदरा बदरा बदरु, बदरत बदरता बदरना बदरता बदरतुमा बदरतुम बदरती बदरतुमा बदरतुन्ना बदरतु बदरना। बदर तो बदरना, ता में थोड़ा सा आ गया, बदर तो बदरना, ठीक है। बदरतु हाँ बदरना। बदरना, चलिए जी जी बिल्कुल सही। हाँ तो तायरा बिन अभी आप करेंगे, कोई भी आप लफ्ज ले लो। रहमा रहमा रहमू रहिमा रहमत रहिमा, रहमता तायरा बिन रहिमा रहमा रहमा रहीमू रहमत हाँ रहमता रहमतुम रहमता तुमा रहमतुम रहीमती रहीमतुमा रहीमतुम तुम, अरे क्या बोल रहीमना रहीमतो रहीमना। थोड़ा सा फिर से करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने आप लोग को करना था रहमा, और मैंने फौरन आपको तंग किया रहीमा, तो मैं समझ गई। फिर से करते हैं, चलिए रहमा ही कर ले। जी बिस्मिल्लाह। जी क्या करूं? रहमा दूसरा रहमा, कोई दूसरा लफ्ज। कोई और लफ्ज चले। ज़हबा जी ज़हबा समझ नहीं आया। ज़हबा 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 ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबतुम नहीं सही है। ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना
ज़हाब तो ज़हाबना। ज़हाब तो ज़हाबना। ऐसी जगह मेरी है। चलिए मैं फिर से आती हूँ दायरा बहन आपके पास। हाँ, मैं अच्छी गड़बड़ कर रही हूँ। नहीं, फरहा ने मुझे कहा ना थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस नहीं छोड़ दी थी ना बीच बीच में। चलिए जी फरहा। मेरी टर्न है। हाँ जी, कोई भी लफ्ज ले लें। फी ले लूं मैं? नहीं नहीं, अभी ये सर्व नहीं करना है, अभी तो वो फिर माजी सर्व करना है। अच्छा सॉरी। चलिए जराबा। चलिए जराबा। आपसे उम्मीद जराबा की नहीं है, वैसे कर ले। चलिए बहुत सिंपल है ना, मैं बहुत किया है। चलिए 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 बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं। चले कज़ाबा ले लेती हूँ। चलिए ले ले। कज़ाबा भी बहुत किया है। कज़ाबा कज़ाबा कज़ाबू कज़ाबत कज़ाबता कज़बना कज़बता कज़बतुमा कज़बतुम कज़बती कज़बतुमा कज़बतुमा कज़बतो कज़बना। बहुत अच्छा। चलिए नसीम बहन आप कोई लफ्ज ले लो। जी बताएं। कोई भी आप लफ्ज ले ले। फाला ले लो। चलिए फारा ले ले, कोई बात नहीं। फाला फाला फालू हाँ फअलत फअलता फअलना हाँ फअलता फअलतुमा फअलतुन तुम हाँ। फअलतु फअलना। फिर से करें एक दफा। फअल फअला फअला फअलू। चलिए फअला 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 फअलू फअलत फअलत सही। फअलता फअल वो बहुत फअलना फअलना बहुत अच्छा। फअलता फअलतुमा फअलतुम हाँ फअलती सही। फअलतुमा हाँ फअलतुन्ना हाँ फअलतु फअलना। बहुत अच्छा। फअल तो फअलना। साबिरा आपा आप कोई ले ले। जी शफा 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 बहुत अच्छा, बेस्ट। शफा 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 शफाऊ शफाअत शफता शफातु शफअन। फिर से करते हैं साबिरा आपा। शफा 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 शफाऊ हाँ शफाअत शअफ्ता शअफ्ना। शफा शफाना सही ओके सही। शफअना शफअत शअफ्तुमा शअफ्तुम शअफ्ती शअफ्तुमा शअफ्तुन्ना शअफ्तु शअफ्ना। साबिरा आपा बहुत अच्छा, पर एक मिस्टेक हो गई। पता है क्या? फे और एन की जगह बदल गई थोड़ी सी। शफा से शअफा हो गया। ओके थोड़ा सा। चलो वो ऐसे बाय हार्ट करते हैं, वो लिख के करते हैं तो याद रहता है। हाँ सही सही। पर कुछ ऐसे होता है ना जिन हो जाती है ये वाली मिस्टेक थोड़ा बहुत। ये तो मेरे normal। पास वो लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए अगर मैं शफा लिखूं ना तो मेरे को याद रहता है। आपको पता है मैं जब फर्स्ट टाइम थी 15 साल की थी, तब हम हौजे में थे, तो मेरी टीचर मुझे हमेशा बुलाती थी और कहती थी कि मेरे साथ पेपर चेक करो। एक दफ़ा उसने मुझे बुलाया और मुझे कहा पेपर चेक करो, टेस्ट थे हमारे। तो मैं चेक कर रही थी और उसने कहा मुझे कि तुम्हें पता है किसी लड़की ने जलसा की जगह पर जसल लिख दिया है। जलसा लिखते हैं ना, जलसा, तो उसने जसल लिख दिया है, जसल। तो वो मुझे पूछती है कि अब क्या करें, तो मैंने कहा नंबर काट दो उसके। तो उसने कहा अच्छा तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहा तुम खुद हो। मैंने फिर तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इतनी मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने तो मुझे अगर वो एक खाली में शफा लिखूं ना, फिर उसके सामने लिखेला हो फिर बोलूं तो, लेकिन मेरे वो
स्टान में अंदर था तो फिर बदल गया। कोई बात नहीं साबिर आपा, मैं आपको इसलिए बता रही थी कि देखिए मुझसे भी हो गई थी मिस्टेक, क्योंकि ये नॉर्मल है, कभी कभी नहीं हम बहुत स्पीड से बोलते हैं तो ये हो जाती है। चलिए तो ताहिरा बहन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपकी तरफ आऊंगी और फिर हम इसको अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपसे कहती हूँ कि हम फेले माजी, फेले मुजारे, फेले अम्र, नफी, नहीं और फिर हरुफ नासिबा और हरुफ जाज़मा, इसके साथ हम अपने वर्ब को कंटिन्यू रखेंगे जो हमने कर लिया है। प्रोनाउन, फिर हम हरुफ जर और फिर मुब्तदा खबर और फिर मुजाफ मुजाफुन इलैह जो भी हमने किए हैं इसको हमने अच्छे से रट्टा लगाना है, बाद में हम इंशाल्लाह जाएंगे। तो हम दोबारा से एक सलवात पढ़ते हैं और अपने दर्स को खत्म मैं करते सुनाऊं? हैं। जी बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। गफरा, गफरा, गफरू, गफरत, गफरता, गफरना, बहुत अच्छा। गफरता, गफरतुमा, गफरतुम, गफरती, गफरतुमा, गफरतुन्ना, गफरतो, गफरना। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जफर है नया लफ्ज, कामयाबी। अच्छा आपको पता है जफर कहते हैं नाखूनों को भी, ऐसे नाखून होते हैं ना उसको भी कहते हैं, और नाखूनों से चीर कर जो चीज हासिल की जाती है उसको जफर कहते हैं, कामयाबी को। चलो इंशाल्लाह इसको हम और डिटेल से करेंगे लफ्जों को। चले अल्लाहुम्मा सल्ली अला रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इसकी? सॉरी मिलेगी, मैं अभी रिकॉर्ड करके ना मैं सिर्फ प्राइवेट में भेज दूंगी, ठीक है, सिर्फ अपने ग्रुप्स में। चल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदाया पाक परवरदिगारा, या अल्लाह हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह मैं तुझसे एक दुआ करती हूँ, ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि खुदाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शैतान जो है वो अल्लाह के दर का कुत्ता है, और कुत्ता जो होता है वो दरवाजे पे बंधा हुआ होता है, लेकिन कुत्ते की एक क्वालिटी होती है कि जो नया आता है उस पर भौंकता है और उसको अंदर नहीं आने देता, लेकिन जिससे कुत्ता जिसको जानता है कि ये मालिक का खास शख्स है तो कुत्ता उसको कुछ नहीं कहता। ए अल्लाह हम तेरे दरवाजे पे आ रहे हैं, लेकिन ये कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर बैठा और भौंकता है और हमें अंदर नहीं आने देता। इमाम फरमाते हैं कि जब कुत्ते से पनाह लेनी होती है ना, कुत्ते से हमें बचना होता है, तो हम उसके मालिक को बुलाकर उसके मालिक से कहते हैं कि अपने कुत्ते को पकड़ो ताकि हम तुम्हारे पास आ सकें। इमाम फरमाते हैं ऐसे ही अल्लाह से पनाह मांगो कि ए अल्लाह इस शैतान कुत्ते को पकड़ो और हम आना चाहते हैं। तो ए खुदा हम बहुत नए नए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं तेरी तरफ, खुदाया इस शैतान से हमें महफूज फरमा। खुदाया शैतान बड़ी रुकावटें डालता है, परवरदिगारा हम हमारे दर्स को कबूल फरमा, और खुदाया हमें कुरान पढ़ने की, समझने की, इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। और ए अल्लाह हम अपने दर्स का सवाब देते हैं 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को, और वहाँ से जो सवाब मिले वो हमें, हमारी औलादों को, हमारे माँ बाप को, हमारे मरहूमीन को, तमाम मोमिनीन को, मुसलमानों को अता फरमा। और ए अल्लाह खुदाया इस दर्स के सदक़े में हमारी जो भी हाजात हैं उनको पूरा फरमा, और ए अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा। खुदाया हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द फरमा।